Okay, should I? Can you please start again? Okay. Professional tax, ESIC, and PF. Professional tax. This tax comes under the state governments in India. A person earning an income from salary or anyone practicing a profession, such as chartered accountant, company secretary, lawyer, doctor, etc., are required to pay professional tax. Different states have different rates and methods of collection. Business owners, working individuals, merchants, and people carrying out various occupations come under the purview of this tax. The maximum amount payable per year is 2,500 rupees. And in line with taxpayers' salary, there are predetermined slabs. Please note that PT is not applicable for senior citizens. So, difference between PTRC and PTEC. Professional Tax Registration Certificate, PTRC, is to be obtained by the company in the role of employer. The company will have to deduct professional tax on salaries paid by it to its employee, where the salary paid to such employee exceeds 7,500 rupees per month. For women, there is a limit of 10,000 rupees. Professional Tax Enrollment Certificate, PTE, is to be obtained by any company for existence and engaging in profession and of course business too within the state of Maharashtra. PTR will have to be paid according to salary paid to its employees, whereas PT liability for company is fixed at 2,500 rupees annually. PTRC is applicable to proprietor, partner, director, and member of AOP. Employees State Insurance Corporation. Introduction. This scheme is an integrated measure of social insurance embodied in the Employees State Insurance Act, and its aim is to accomplish the task of protecting employees as defined in the Employees State Insurance Act 1948 against the employment injury and to provide medical care to insured persons and their families. The ESI scheme applies to factories and other establishments wherein 10 or more persons are employed. In some states, threshold limit for coverage of establishments is still 20. Employees of the aforesaid categories of factories and establishments earning wages up to 21,000 rupees per month are entitled to Social Security cover under the ESI Act. This scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employer is 4.75% of the wages payable to the employees. The employee's contribution is at the rate of 1.75% of the wages payable to an employee. Benefits under ESI scheme. Sickness benefit, disablement benefit, dependence benefit, maternity benefit, medical benefit, other benefits being provided to the beneficiaries are confinement expenses, funeral expenses, vocational rehabilitation, physical rehabilitation, unemployment allowance, and skill upgrade and training. Provident Fund. PF registration is mandatory for all establishments with 20 or more persons. Some establishments have less than 20 employees. Some establishments having less than 20 employees would also be required to obtain PF registrations. All employees become eligible for a PF right from the commencement of employment, and the onus of deduction and payment of PF is with the employer. As per the above rules of EPF, employee whose pay is more than 15,000 rupees per month at the time of joining is not eligible and is called non-eligible employee. Employees drawing less than 15,000 rupees per month have to mandatorily become members of the EPF. However, an employee who is drawing pay above prescribed limit, that is 15,000 at the moment,
can become a member with permission of Assistant PF Commissioner if he and his employer agree. Contribution by employer and employee. Employer contribution is treated as expense. Employee contribution is treated as a liability. If employee contribution is not paid within the due date of the concerned act, it will be treated as income and taxed at the rate of 30%. So it's good to pay in time. Please note, if you are facing any financial problem for the payment of PF and ESIC in time, then pay at least employee contribution. Should I continue, sir? No, madam. I will explain. Okay, over to you, sir. Thank you, madam. Thank you for your commitment. You are not feeling well, still you are accepted reading book. And thanks to all participants for your valuable time. Last 2 sessions we are absent due to I am out of Pune, some technical issues and network issues. Today we are reading professional tax, ESIC and provident fund. प्रोफेशनल टैक्स जो है वो है, अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी नोटिस चालू हो गया. जैसे वी आर एवरीवन गेटिंग द courtesy notice, courtesy request from the PT डिपार्टमेंट. उसको रिप्लाई देना बहुत जरूरी है. जिसका जीएसटी नंबर है उनको कंपलसरी प्रोफेशनल टैक्स पे करने के लिए भी नोटिस आने को चालू हो गए. सॉरी, जिसका जीएसटी नंबर है उनको कंपलसरी प्रोफेशनल टैक्स का भरना बहुत जरूरी है. उनको नोटिस भी चालू हो गए. प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? इससे स्टेट टैक्स, स्टेट टू स्टेट ये चेंज हो सकता है. A person earning from salary or any practicing professionals like CAs, company secretary, lawyers, doctors, they have to pay the professional tax. जैसे आप जॉब में हैं तो आपका every year 2500 per month 200 rupees आपका प्रोफेशनल टैक्स and in the month of February 300 rupees आपका डिडक्ट होगा. जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे डॉक्टर से, सीए, सीएस से, they have to pay the professional tax 2500 every year. हर एक स्टेट अलग अलग उसका रेट होता है. दिस इज डिपेंड अपॉन द स्टेट टू स्टेट. बिजनेस ओनर, वर्किंग इंडिविजुअल, मर्चेंट पीपल्स कैरिंग ऑर्डिनरी बिजनेस और प्रोफेशनल्स, दे हैव टू पे द प्रोफेशनल टैक्स. मैक्सिमम कितना पे करना है? दे हैव टू पे 2500 रुपीज पर एनम आपको पे करना है. सीनियर सिटीजन के लिए प्रोफेशनल टैक्स अप्लीकेबल नहीं है. सपोज आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रोफेशनल टैक्स. आपको प्रोफेशनल टैक्स भरने का जरूरत नहीं है. इफ योर एज इज अबव 60, स्टिल यू आर डूइंग द बिजनेस, और इफ यू आर ए पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म or you are a director of any other company, no need to pay the professional tax if your age is above 60. Difference between PTRC and PTEC. PTRC क्या है, PTEC क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. PTRC means Professional Tax Registration Certificate is to be obtained by the company in the role of employer. As an employer, you have to take a PTRC registrations and deduct प्रोफेशनल टैक्स ऑन सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज. अब जो भी सैलरी एम्प्लॉय पे करेंगे, इफ इट्स सैलरी इज मोर देन 7500 पर मंथ, और इफ योर एम्प्लॉय इज द वुमेन एम्प्लॉय, her salary is more than 10,000, you have to deduct the professional tax and pay to the government. What is the PTEC? PTEC is Professional Tax Enrollment Certificate. It's to be obtained by the company for its own existence, like professions or business. We already discussed, like proprietors, partners, directors, they have to pay professional tax 2500 every year. Professional tax का जो slab है, if your salary is up to 7500 for man employee, 7500 is no need to pay any professional tax. 7500 to 10,000, 175 rupees. If your salary is more than 10,000, you have to deduct 200 rupees professional tax per month
and 300 rupees in the month of February. What is the ESIC? This scheme is an integrated measure of social insurance for the employees. जो भी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन के लिए ESIC स्कीम अंडर द ESIC एक्ट में अप्लीकेबल होता है। ESIC स्कीम जो है वो अप्लीकेबल टू द फैक्ट्री एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट वेयरिन 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। आपका कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, देन ESIC एक्ट विल बी अप्लीकेबल। इन सम स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कवर इज एस्टैब्लिशमेंट इज 20। सम स्टेट में 20 के ऊपर रहा तो आपको ESIC एक्ट अप्लीकेबल होगा। एम्प्लॉय ऑफ द ऑफर शीट कैटेगरी, आपका जो सैलरी और वेजेस है आपका 21,000 से नीचे होना चाहिए तो ही आपको ESIC अप्लीकेबल होता है। सपोज 21,000 से ज्यादा है आपका एम्प्लॉय का सैलरी, देन ESIC इज नॉट अप्लीकेबल। दिस स्कीम इज फाइनेंस्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। जैसे PF है, ऐसे इसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है और एम्प्लॉय का भी होता है। इन केस ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओनली कलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड पे टू द गवर्नमेंट, बट ESIC एंड PF में ही हैज टू कंट्रीब्यूट। एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और एम्प्लॉय का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 4.75% ऑफ द वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज, मींस ESI एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4.75% and employee का contributions it is 1.75% of the wages payable। employee का contributions। ESIC एक्ट में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? आपका सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट और एनी अदर बेनिफिट्स लाइक confinement expenses, funeral expenses, vocational rehabilitations, physical rehabilitations, unemployment allowances and skill upgrade and training. All these benefits we will get from the ESIC scheme. What is the Provident Fund? Provident Fund is mandatory for all establishment with 20 or more employees. Suppose आपका कंपनी में 20 और 20 से ज्यादा आपका कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय लोग, तो आपको ESI PF कंपलसरी अप्लीकेबल होगा। बहुत सारे कंपनी में सैलरी एंड वेजेस दिखाया हुआ रहते, बट ESI PF नंबर नहीं लिया हुआ रहते। तो आपको ये देखना है आपके पास कंपनी में कितना एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। आपका सपोज 20 एम्प्लॉय से ज्यादा लोग काम कर रहे, तो आपको ESI PF का नंबर लेना बहुत जरूरी है। PF एम्प्लॉय का जो सैलरी रिस्ट्रिक्शन है इधर 15,000 है। जैसे ESIC एक्ट में 21,000 आपका सैलरी होना चाहिए तो ये आपको ESIC स्कीम में आप आएंगे, उससे ज्यादा रहा तो आपका स्कीम से आप बाहर आएंगे। ऐसे PF एक्ट में आपका सैलरी लिमिट है ये 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ आपका सैलरी उससे कम है तो आप PF में मैंडेटरली यू हैव टू कम अंडर द PF एक्ट। सपोज आपका 15,000 से ज्यादा है तो आप वॉलंटरी भी आप इसमें स्कीम में आ सकते हैं, तो आपको परमिशन ऑफ द असिस्टेंट PF कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Contribution by employer and employee. Employer contribution is treated as an expenses. जैसे आप एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्सपेंसेस होता है, मींस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको ग्रुप देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज एन लायबिलिटी। जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुप देना बहुत जरूरी है। ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। एज ए अकाउंटेंट्स बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स होता है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज एक्सपेंसेस and employee contribution is always liability because we are collecting from the employees and paying to the government. Employer contribution है that is paying our own out of pocket to the government, so that is treated as an expenses. If employee contribution is not paid within the due date of the concerned act, it will be treated as an income and taxed at the rate of 30%. Pay in time. Why I am repeating every times? Employee contribution जो ESI हो या PF हो, आपको इन टाइम में गवर्नमेंट को देना बहुत जरूरी है। इन टाइम में मींस नॉट बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स, दैट शुड बी पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द कंसर्न एक्ट, मींस PF ESI एक्ट। अदरवाइज आपको क्या होगा, 30% उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी बहुत सारे इनकम टैक्स में लिटिगेशन चालू है इसके ऊपर। पहले ये लिटिगेशन का पार्ट था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स दे मेड इट ए कंपलसरी रूल्स। मींस आपने सपोज 1 लाख रुपए एम्प्लॉय का आपने
ESI PF लेट पे किया तो यू हैव टू पे 30% टैक्स ऑन दिस. सो बी केयरफुल. सपोज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पे करने में, यू कैन पे एटलीस्ट एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको इन टाइम पे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको उसके ऊपर भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. उसके लिए केयर लेना बहुत जरूरी है. Thank you, Anjali madam. You can start goods and service tax. Yes, thank you, HR sir. Thank you. So we move ahead with goods and service tax. So one nation, one tax, one market. With this aim, this GST has been introduced. So GST means goods and service tax, which is levied on supply of goods or services or both. Supply must be made for consideration and must be in furtherance of the business. No GST on alcohol, petrol, diesel, natural gas, etc. Electricity supply is exempt services. Following taxes are subsumed as mentioned below. Central GST and state GST. So under central GST, we have central excise, additional excise duty, service tax, countervailing duty, special additional duty. So there are under state GST, we have VAT, entertainment taxes, luxury tax, tax on lottery, taxes on advertisements, etc. So total 17 taxes have been abolished and are introduced as GST. Exempt supplies. It includes supplies taxable at a nil rate, that is on which tax is not applicable as per the GST law. These bills should be as bill of supply instead of tax invoice. Zero rated supplies. These are the supplies on which tax is levied at the rate of 0%. These bills should be headed as export invoice instead of tax invoice. It should hold a title of supply meant for export under bond or letter of undertaking without payment of IGST. Harmonized system of nomenclature, HSN, and Service Accounting Code, SAC, are important concepts as businesses need to determine the HSN and or SAC of the goods and services that they sell, since these are mandatory fields in a GST compliant invoice. Mainly HSN and SAC code are the deciding factor of GST rate also. A business with a turnover of less than 1.5 crore need not quote HSN in the invoice. A business with turnover between to quote a two-digit HSN. A business with turnover equal to or greater than 5 crore has to quote a 4-digit HSN. All exports have to quote 8-digit HSN in the invoice. At the time of GST registration, the business taxpayer has to mention HSN code or SAC code of the goods services he deals with, which decide the rate of GST. The Constitution of India amended. Currently, the fiscal powers between the center and the states are clearly demarcated in the Constitution, with almost no overlap between the respective domains. The center has the power to levy tax on the manufacture of goods under Old Act. The states have the power to levy tax on the sale of goods under Old Act. In the case of interstate sale, the center has power to levy a tax, but the tax collected and retained entirely by the states under the Old Act. Introduction of GST required amendments in the Constitution so as to simultaneously empower the center and the states to levy and collect tax under GST Act. Article 246A of the Constitution empowers the center and states to levy and collect the GST. So GST documents and vouchers to be maintained. Tax invoice, bill of supply, export invoice, receipt voucher, refund voucher, payment voucher, debit note and credit note, ISD invoice, delivery challan, advance received
RCM was. Okay, that's it. Should I continue, sir? Yes, madam, you can read this. Okay. So what is anti-profiteering clause? Anti-profiteering measures are certainly going to be a boon to the customers. If any reduction in tax or services benefit is passed on to the customers by way of reduced prices. If it is not passed by the supplier, the customer has the right to take legal action on supplier. Job work. Many manufacturing companies outsource certain processes so as to reduce the cost of manufacturing or output. This outsourced work is called as job work. In other words, the work that is outsourced by X company for any treatment or process on goods to Y company, goods belonging to X company. Here X company is the principal company and Y company is the job worker, and the work or services which they provide are called as job work. A registered person, principal, can send inputs or capital goods for job work without payment of tax to job worker, but delivery challan or e-way bill should be sent along with the goods. This permission will be for transfer of goods from principal to the job worker and then from there to another job worker again without payment of tax. Direct supply from premises of job worker shall be allowed only after fulfilling the following condition. Principal has to declare the place of business of the job worker as his additional place of business. In case where job work is registered, the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the commissioner. Please note that if the inputs sent for the job work is not received back within the time limit of 1 year, then the input sent for job work is deemed as sale on the day when the said inputs were sent out. Where capital goods other than molds and dies, jigs and fixtures or tools sent for job work are not received back within 3 years, then it shall be deemed as such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when said capital goods were sent out. Any waste and scrap generated supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax. If such job worker is registered, or by the principal if the job worker is not registered. Impact of GST on Indian economy. Positive impact on Indian economy. Speed up the economic union of India. Better compliance and reducing cascading effect of taxes. No confusion, simple and transparent tax. Around 3 lakh crore of services are not clear under the old act. Uniformity in tax regime. Improvement in cost competitiveness of goods and services in the international market. Life gets simple. 17 indirect taxes abolished. Revenue will increase. A common market. Increased logistic efficiency. Trucks in India travel 280 kilometers per day and 800 kilometers per day in USA. Make in India. Less developed states get a lift. Impact of GST on BOP, Best Balance of Payments. BOP is a statement of a country that indicates whether the country has a surplus or deficit of funds. When the country's exports are more than its imports, its BOP is said to be in surplus, else it is in deficit if imports are more. Country's BOP is vital for following reasons. BOP of the country reveals its financial and economic status. Used as an indicator of country's currency appreciating or depreciating. Understand the economic dealings of the country. Have a look at this chart. BOP elements.
current accounts, that is goods and services, capital accounts, that is assets, financial accounts, that is investments and intangible. Increase in exports under letter of undertaking, that is LUT, or bound without payment of duty. Refunds are getting processed faster. Corruption has reduced. Export incentives are directly credited to the exporter account, reflecting a boost to exports. GST impact on Indian fiscal deficit. Fiscal deficit means the difference between government's total revenue and total expenditure in a financial year. Following measures. Explain it. Yeah, because it's take time. Okay, sir. Oh, sure. Over to you. Goods and service tax. Everyone know GST Act is now almost it's matured. Abhi GST Act after 3-4 years it become mature. But इसका पीछे क्या है? GST Act का benefits इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या इफेक्ट्स हुआ, बिजनेस में क्या इफेक्ट्स हुआ, और कौन सा टैक्सेस इसमें मर्ज हुआ, बेसिक समझना बहुत जरूरी है. जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. GST means goods and service tax, which is levied on supply of goods or service or both. GST जो है एक तो किसके ऊपर लगेगा, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, नहीं तो सर्विस होना चाहिए, नहीं तो दोनों होना चाहिए, तो ही जीएसटी लगता है. ये दोनों नहीं रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा. सप्लाई मस्ट बी फॉर कंसिडरेशंस एंड इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. जीएसटी कब लगेगा? आप सपोज एक मटेरियल सेल कर रहे हैं तो आप उसको कंसिडरेशन भी ले रहे हैं. कंसिडरेशन वन ऑफ द कंडीशन फॉर लेवी ऑफ द जीएसटी. सेकेंड कंडीशन इज फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मीन्स आप बिजनेस करने के लिए वो मटेरियल यूज कर रहे हैं आगे. सपोज आप रॉ मटेरियल लिया, आप उसको कुछ फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए आपने वो यूज हो रहे, देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. नो जीएसटी ऑन अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. जीएसटी फिलहाल इसके ऊपर अभी लेवी नहीं हुआ है. दे में इंक्लूड शॉर्टली. अभी पेट्रोल का रेट इतना आगे जा रहे तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सब चीजें भी जीएसटी में इंक्लूड होना चाहिए. उसके ऊपर भी अभी काउंसिल डिसीजन ले, शॉर्टली दे कैन टेक द डिसीजन टू इंक्लूड ऑल दिस प्रोडक्ट आल्सो पार्ट ऑफ द जीएसटी. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विसेज. इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में नहीं आएगा. जीएसटी के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ ये करेंगे. जीएसटी आने के बाद कौन सा टैक्सेस अबॉलिश हुआ, मींस कौन सा टैक्स अभी नहीं है. सेंट्रल जीएसटी में पहले सेंट्रल एक्साइज था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, कंट्रोलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. स्टेट टैक्स में वैट, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, लग्जरी टैक्सेस, टैक्स ऑन लॉटरीज, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स. टोटल 17 टैक्सेस आर अबॉलिश्ड. जैसे जीएसटी आ गया तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हुआ है. इट इज वेरी गुड थिंग बिकॉज वी reduce these 17 compliance. Now we are doing only GST compliance. Exempt supplies. Exempt supply, it includes supply taxable at nil rate. Exempt supplies like agriculture product, there is no need to pay the GST. This is the nil rated products. There is no need to pay GST. उसके लिए सपोज आप नील रेटेड जीएसटी का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या देना है, आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है. सपोज आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सपोज आप जवार आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देना है, आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है. सपोज आपका किराना दुकान है, आप कोई बिल मांग रहे तो यू शुड नॉट गिव द टैक्स इनवॉइस, यू गिव बिल ऑफ सप्लाई बिकॉज दिस इज द नील रेटेड. जीरो रेटेड means what? These are supply tax which is levied at zero rated. जीरो भी एक रेट है, मीन्स टोटली एग्जम्प्ट नहीं है, इसको आपका टैक्सेबल है. जीरो रेट कब लगेगा? व्हेन प्रोडक्ट आर एक्सपोर्ट
आपका प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको 0 रेटेड में हम लोग इनवॉइस बना के दे देते हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट इनवॉइस, यू हैव टू रेज द एक्सपोर्ट इनवॉइस इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। जैसे एग्जाम्पशन रहा तो आपको क्या लिखना है, बिल ऑफ सप्लाई लिखना है। जैसे आपका एक्सपोर्ट है तो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस लिखना बहुत जरूरी है, आपका टैक्स इनवॉइस नहीं लिखना है। आपको ये भी लिखना है, सपोज आप टैक्स नहीं लगा रहे तो उसको टाइटल आपको लिखना है सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर द बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी। एक्सपोर्ट जब आप मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड दूसरा होगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सपोज आप विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी पे कर रहे हैं, यू कैन गेट द रिफंड इन फ्यूचर। आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसका नंबर सब लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट HSN एंड SSC कोड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कोड एंड मोस्ट ऑफ still they are most neglected part of the HSN and SSC code। जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं HSN and SSC कोड लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, इसके ऊपर ही आपका प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आपने HSN कोड गलत डाल दिया तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। SSC कोड तो कॉमन रेट है 18%, वेरी सिंपल, बट HSN कोड में आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्लासिफिकेशन जो रेट ऑफ जीएसटी है वो HSN कोड के ऊपर ही डिसाइड होता है। उसके लिए आपको टेक्निकली देखना है आपका जो HSN कोड जो है वो बराबर है क्या नहीं है। सपोज आप न्यू बिजनेसमैन है तो आपको ये देखना है HSN कोड आप प्रॉपर सेलेक्ट करके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या आप गलत HSN कोड सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी HSN कोड फ्रॉम 1421 दे आर मेड मैंडेटरी टू फॉर ऑल। ये जो है इट्स ए ओल्ड HSN कोड स्लैब, but from 1421 they changed the HSN code up to 5 crores everyone have to quote 4 digit HSN code, above 5 crores everyone quote the 6 HSN code compulsory अभी आपको डालना ही है। जब आप GSTR भर रहे हैं तो आपको कंपलसरी HSN कोड देना बहुत जरूरी है। आपका सपोज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 8 डिजिट का HSN कोड डालना बहुत जरूरी है। एट द टाइम ऑफ GST रजिस्ट्रेशंस the business taxpayer has to mention HSN SSC code for the goods and services deal with it। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं HSN कोड आप टेक्निकली आपको प्रॉपर एनालिसिस करके HSN कोड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट का रेट ही चेंज हो जाता है। जैसे GST एक्ट आ गया तो GST एक्ट आने से पहले अपने को कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी हुआ, क्योंकि currently the fiscal power of the between central and state are clearly demarcated in the constitutions with almost no overlap between the respective domains। जैसे GST एक्ट आ गया तो टोटल सेंट्रल एंड स्टेट का जो पावर है दैट इज चेंज्ड, सो दैट दे नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। पहले ओल्ड एक्ट में क्या था, सेंट्रल हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो दैट टैक्स इज बी लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एक्साइज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था गुड्स उसका लेवी करने का पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या था, पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ द गुड्स। जैसे मटेरियल सेल हो गया देयर levy the tax on sale of the goods, means for example VAT। in case of interstate sales central has the power to levy of the tax, but the tax will be collected and returned by the entire states। ये सब हम लोग जो बात कर रहे जो VAT, एक्साइज एंड CST के टाइम के जो बात था। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ GST, the amendments in the constitution so as simultaneously empower the central and state to levy and collect the taxes। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को भी लेवी एंड कलेक्ट टैक्स का पावर दे दिया हुआ। आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट द GST। आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन का गिवन द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द GST। जैसे आप इतना इजी नहीं है, बाकी हम लोग देखा GST बहुत सारे सिंपल है, बट इसका डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है एंड 100% बहुत सारे लोग इनको मेंटेन नहीं होता है। बट ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टैक्स इनवॉइस तो होना ही है आपको। सपोज आपका टैक्स सेल कर रहे हैं आप मटेरियल विद टैक्स, यू हैव टू रेज द टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई, अभी हम लोग बात किया ऊपर, जो नील रेटेड है दे हैव टू इशू द बिल ऑफ सप्लाई नॉट द टैक्स इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस, जैसे आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो आप उसका टैक्स इनवॉइस ऐसे नहीं लिखना चाहिए, you have to mention export invoice।
एंड रिसीट वोचर्स, जो भी आपका पैसे आ गया उसका रिसीट का भी वोचर्स बनाना चाहिए, क्योंकि सपोज आपका सर्विस इंडस्ट्री है, यू हैव टू पे जीएसटी ऑन advance receipt also, not only sales, we have to pay GST on receipt also, so we have to maintain the receipt vouchers. Refund vouchers, आपने कुछ अमाउंट रिफंड किया उसका वाउचर बनना चाहिए, पेमेंट वाउचर होना चाहिए, हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव द डॉक्यूमेंटेशन इन जीएसटी। डेबिट नोट्स होना चाहिए, क्रेडिट नोट्स होना चाहिए, आईएसडी इनवॉइस होना चाहिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइसेस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। जैसे आपका बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, उधर जो भी सर्विसेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका इनपुट भी आपको मिलेगा, उसके लिए इसको आईएसडी इनवॉइस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिलीवरी चलन होना ही चाहिए आपका, जैसे आप लेबर चार्जेस में मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी चलन, बाकी का भी डिलीवरी चलन लगेगा। एडवांस रिसीट वोचर इन कैश ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आरसीएम वोचर, सपोज आपका आरसीएम एप्लीकेबल है, सपोज इफ यू आर taking the service of security, transportation charges and legal charges, means advocate का आपने जो charges दे रहे, you have to pay the reverse charge mechanism, उसके लिए भी आपको इनवॉइस बनाना बहुत जरूरी है। एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज क्या होता है? The anti-profiting measures are certainly going to boon to the customer. If any reduction in the tax or services benefit is passed on to the customer by way of reduce the prices. If it is not passed by the supplier, the customer has the right to take legal action on the suppliers. Means suppose for example, आप कुछ commercial shop of purchase कर रहे हैं, you are paying 12% GST, but 12% builder आपसे collect कर रहे हैं, but उनका input tax का भी उनको benefit मिलता है। जैसे इनपुट टैक्स का उनका बेनिफिट होने के बाद सपोज ही पेइंग ओनली 8% ऑफ द जीएसटी, द रेस्ट ऑफ द 4% यू हैव टू रिफंड टू द कस्टमर। आपको ये देखना है जो भी टैक्सेशन के लिए जो भी आपको बेनिफिट हो रहे तो वो आप कस्टमर को पास करना जो बहुत जरूरी है। आपको टैक्सेशन के ऊपर भी आपको मार्जिन कमाने के लिए गवर्नमेंट अलाउड नहीं करते, इसको एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सपोज कुछ जीएसटी रेट में कम ज्यादा हुआ तो वो बेनिफिट कंपलसरी कस्टमर को पास ऑन होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉब वर्क के बारे में। जॉब वर्क के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी डेफिनेशन के बारे में बात किया हुआ है, वी नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। जॉब वर्क मींस जैसे एक्स कंपनी है, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए वाई कंपनी को मटेरियल बेचता है, तो एक्स इज द प्रिंसिपल कंपनी एंड वाई इज द जॉब वर्कर कंपनी, उनको हम लोग जॉब वर्कर बोलते हैं। The registered person principal can send input or capital goods for job work without payment of the tax. Suppose आप job work के लिए मटेरियल बाहर भेज रहे, that is not a sales, so no need to pay the GST. आप सिर्फ डिलीवरी चलन और ई-वे बिल के साथ में आप भेज सकते, उसको आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए एक नया फॉर्म है ITC 04, आपका मटेरियल जॉब वर्क के लिए कितना गया, कब वापस आ गया, ये सब डिटेल अपने को ITC 04 में देना पड़ता है। This permissions will be for transfer of goods from principal to job worker and then from there another job worker without payment of the tax. Suppose X send material to Y and again Y send material to Z for a job work purpose. So then also no need to pay the GST. Direct supply from premises of job worker shall be allowed only after fulfilling the following condition. Suppose X material भेज दिया Y को, Y वापस Z को भी बेच सकते हैं, बट उसके लिए उनको क्या कंडीशन करना है? प्रिंसिपल जो सप्लायर है, he has to declare his place of business of the job worker. जब आप प्रिंसिपल X जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का प्लेस ऑफ बिजनेस, Y का भी उधर उनका मेंशन होना चाहिए, तो ही वो जो Y है वो मटेरियल आप Z को बेच सकते हैं। अदरवाइज he cannot send goods from Y to Z. ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप जॉब हो गए ना, आप उधर से उधर भेज दो, दैट इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर, आपने प्रिंसिपल सप्लायर है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो जॉब वर्कर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो ऐड होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन में, तो ही आप Y to Z मटेरियल भेज सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू टेक बैक एंड सेंड टू Z। बट एक्सेप्शन है उसमें, सपोज जॉब वर्कर रजिस्टर है, मींस ही इज आल्सो अंडर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट एंड द प्रिंसिपल place is engaged in the supply of goods as may be notified by the commissioner. Suppose अब commissioner notify है तो भी आप उसको directly transfer कर सकते हैं। If the input sent for the job worker is not issued back within the period of 1 year, an input sent for job worker is deemed to be sales. जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो
मटेरियल जॉब वर्कर को भेज देते हैं, बट वो मटेरियल वापस नहीं आते, उसके लिए भी टाइम लेने, क्योंकि उधर मिस यूटिलाइजेशन होने का चांसेस है लॉ का। उसके लिए लॉ एकदम स्पेसिफिक लिखा हुआ है, आप जॉब वर्कर के मटेरियल भेज दिया तो वो विद इन 1 ईयर में वापस आना चाहिए। सपोज वो 1 ईयर में वापस नहीं आया तो वो जॉब वर्कर के ऊपर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको केयर करना है, जो भी आप मटेरियल जॉब वर्क के लिए भेज रहे, यू हैव टू टेक बैक विद इन 1 ईयर। सपोज आपको कैपिटल गुड्स है अदर देन मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स, टूल्स एंड सेंट फॉर जॉब वर्कर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन 3 इयर्स। जैसे नॉर्मल इनपुट मटेरियल के लिए जॉब वर्क के लिए 1 ईयर है, जैसे कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स के लिए उधर 3 इयर्स है। सपोज 3 इयर्स के अंदर आपका गुड्स वापस नहीं आया तो भी उसको ट्रीटेड एज ए सेल। सो आपको ध्यान में रखना है जो भी कैपिटल गुड्स है वो 3 इयर्स में वापस आना है। Any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of the tax if such job worker is registered. Again same जैसे हमने ऊपर डिस्कशन किया, सपोज वो जॉब वर्कर वर्क करते टाइम में कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ तो वाई डायरेक्टली वो सेल कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है, जो वाई है वो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, और बाय द प्रिंसिपल इफ द जॉब वर्कर इज नॉट द रजिस्टर्ड। सपोज जॉब वर्कर वाई रजिस्टर नहीं है, वो जो स्क्रैप है वो वाई सेल नहीं कर सकते, वो वाई टू प्रिंसिपल को आना चाहिए, एक्स को, देन एक्स कैन सेल द स्क्रैप मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते थे ठीक है स्क्रैप है ना, आप उधर से उधर भेज दो, इफ ही इज अ रजिस्टर्ड डीलर देन इट इज ओके, अदरवाइज आपको वापस आपको स्क्रैप लेके आपको सेल करना पड़ेगा। जीएसटी के लिए क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, हम लोग इधर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स, स्टार्टिंग में बहुत सारे दिक्कत हुआ, वो स्क्रंच बहुत सारे बाहर आ गए, अभी हम लोग इट्स वेरी वर्किंग वेरी स्मूथली। उसके लिए हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दी जीएसटी ऑन इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। स्पीड अप द इकोनॉमिक यूनियन ऑफ इंडिया, अपना इकोनॉमिक उससे ग्रोथ होगा, क्योंकि जो कंप्लायंस पार्ट था, इट्स मोर देन 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंप्लायंस पार्ट और जो हेडेक था वो कम हो गया, उसके लिए अपना इकोनॉमी भी ग्रोथ हो गया। बेटर कंप्लायंस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट कटिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस। पहले कैसे था, एक्साइज के ऊपर भी टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ता था, आपको एक्साइज के ऊपर भी आपको वैट भरना पड़ता था, दैट कैस्केडिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड। अभी आपको डायरेक्ट जीएसटी बेसिक वैल्यू के ऊपर भरना पड़ेगा। पहले कैसे था, सपोज एक असेसेबल वैल्यू 100 रुपीज है, उसके ऊपर सपोज 10 रुपीज एक्साइज है, वैट आपको 110 रुपीज के ऊपर आपको वैट भरना पड़ता था। उसके लिए क्या वो प्राइस का जो ये था जो बढ़ जाता था, जो रेट ऑफ रहता था प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था। जैसे जीएसटी एक्ट में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इनपुट, आप सपोज पे कि आप इनपुट बेनिफिट ले सकते और आप डायरेक्टली असेसेबल वैल्यू के ऊपर 18% लगा रहे, उसके लिए टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। नो कंफ्यूजन, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स। पहले जैसे बहुत सारे कंफ्यूजन था, जैसे ऐसे डिस्प्यूट्स था कि ये जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है क्या गुड्स है। फॉर एग्जांपल अभी सॉफ्टवेयर का जो सीडी है, सीडी का अभी वो सीडी वैट वाला बोलता था दिस इज द प्रोडक्ट, इट्स ए गुड्स, सो वी हैव टू यू हैव टू पे द वैट। और सॉफ्टवेयर वाला बोलता था नो इट इज ए सॉफ्टवेयर, सो यू हैव टू पे द सर्विस टैक्स फुल ऑन दैट अमाउंट। ऐसे बहुत सारे जो डिस्प्यूट था, जो सर्विस और गुड्स के अंदर जो डिस्प्यूट लिटिगेशंस था, वो जीएसटी आने के बाद वो एकदम क्लियर हुआ। अराउंड 3 लाख करोड़ जो टैक्स डिस्प्यूट्स, इसका वही एक ही रीजन से था, वो क्या गुड्स है या सर्विस है, यही डेफिनेशंस क्लियर नहीं था ओल्ड एक्ट में। अभी नया जीएसटी में इट्स वेरी क्लियर, गुड्स है ये सर्विस है, दैट्स सो इट्स वेरी इजी टू क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देयर इज नो एनी डिस्प्यूट ऑन दिस। टैक्स में यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स रेजिम, इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस गुड्स एंड सर्विस इन द इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट का प्राइस कम हुआ, यू कैन कॉम्पिट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड लाइफ गेट सिंपल, क्योंकि जीएसटी डे बाय डे गेटिंग वेरी सिंपल। अभी बहुत सारे कंप्लायंस पार्ट खत्म हुआ, पहले कैसे अब हर एक रिटर्न सबको भरना पड़ता था, तो अभी बहुत सारे जो अबोव 50 करोड़ कंपनी है, 100 करोड़ कंपनी है, दे आर गिविंग द ई इनवॉइस। जैसे ई इनवॉइस सबको हो गया, शॉर्टली 2-3 साल में वो भी ई इनवॉइस हो जाएगा, तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, आपको उधर से बिल जनरेट करने का, रिटर्न विल बी गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड। आपको वापस जीएसटी रिटर्न भरो, जीएसटी 1 भरो, 3 भी भरो, ऐसे कुछ नहीं रहने वाला है। अभी स्लोली आफ्टर 1-2 इयर्स आप सबके लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप उधर ही ई इनवॉइस करना है, तो उधर एक रिटर्न का अमाउंट जनरेट होगा, उधर आपको अमाउंट पे करना है। इट्स वेरी सिंपल लाइफ अपने को मिलेगा। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस अबॉलिश हो गया,
रेवेन्यू विल इंक्रीज, कॉमन मार्केट हो गया, इंक्रीज इन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। बहुत सारे ट्रैवलिंग पे ऑक्ट्राई वो पे करने में दिक्कत होता था, तो उधर भी डिस्प्यूट से अपना जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी था वो कम था। जैसे इंडिया में सिर्फ ट्रैवल 280 किलोमीटर पर डे, जैसे यूएस को कंपेयर किया तो इट इज 800 किलोमीटर पर डे यूएस में ट्रैवलिंग एफिशिएंसी रहा, तो अपना इधर सिर्फ 280 किलोमीटर था। ये भी अपना जीएसटी आने के बाद और फास्टैग आने के बाद और अपना स्पीड बढ़ गया, इट्स वेरी गुड साइन। इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो गया, अपना बाहर का लोग भी इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि टैक्स में ट्रांसपेरेंसी आ गया, और मेक इन इंडिया एंड लेस डेवलप्ड स्टेट गेट अ लिफ्ट। जैसे बहुत सारे स्टेट डेवलपमेंट नहीं था, उसको वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो शेयर ऑफ टैक्स होते हैं वो हर एक को अलग इसमें हो जाता है, तो सब स्टेट को भी इसमें बेनिफिट होता था। पहले जैसे इफ सपोज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ टैक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट, सो इसमें कैसे हुआ, अभी सभी स्टेट के लिए ये बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो भी प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलने वाला है वो सेंट्रल से अलोकेशन होने वाला है। उसके लिए जीएसटी आने के बाद जो अंडर डेवलपमेंट स्टेट था उनके लिए भी इसमें बहुत सारे फायदा हुआ। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सारे लोग ये वर्ड फर्स्ट टाइम में सुना रहेगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंट्री दैट इंडिकेट्स वेदर द कंट्री हैज ए सरप्लस और डेफिसिट ऑफ फंड। ये जो ये है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये आपको इंडिकेट करते हैं आपका कंट्री का सरप्लस है क्या डेफिसिट है। ये सरप्लस और डेफिसिट कैसे हम लोग कैलकुलेट होता है, व्हेन द कंट्री एक्सपोर्ट आर मोर देन द इंपोर्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी सरप्लस, मींस अपना एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना सरप्लस होता है, सपोज इंपोर्ट ज्यादा हुआ अपना डेफिसिट होता है। द कंट्री ऑफ बीओपी इज अ विटल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवील्स द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस है तो योर कंट्री इज वेरी गुड कंट्री एंड यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इससे भी इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट विल कैलकुलेटिंग द वर्क अपना करेंसी जो है उसका अप्रिशिएट करना होता है, डिप्रिशिएट होता है। दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर which currency also going up and down. Understand the economic dealing of the country. आपका कंट्री का डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है मींस योर कंट्री इज वेरी गुड कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एलिमेंट्स में 3 कैटेगरी होता है, करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये 3 कैटेगरी टाइप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अंडर द LOT or bond without payment of taxes and refund also getting very fast. Corruption has reduced. Export incentive are directly credited to the export account, reflecting boost to the exports. जैसे एक्सपोर्ट बढ़ गया जीएसटी के लिए, जैसे आपने LOT on the basis of LOT you can export the goods without payment of the duty, और उसके बाद सपोज आप जीएसटी पे करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन आपको रिफंड भी फास्ट मिल रहे हैं। बीच में जो भी पहले करप्शन होता था तो दैट विल बी रिड्यूस्ड। अभी डायरेक्टली जो भी होगा आपका अकाउंट में जमा होगा, जो भी इंसेंटिव्स है वो भी इंसेंटिव्स आपको अकाउंट्स में डायरेक्टली जमा हो रहे हैं। दैट इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। सो ड्यू टू जीएसटी अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी सरप्लस में अभी आ रहे। दैट इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी फॉर द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स। Now it is 6:26. If you have any queries related to today's topics, you can raise your hand. I will unmute you and you ask the questions. We have another 4 minutes. Have any queries related to today's sessions and we'll give the answer. Any queries, any general query if you have related to GST and other ESI, PF Act, you can ask the questions. Otherwise, you can ask the question in our groups. Know your balance sheet. We have a groups. If you have any queries related to today's sessions, you can post the queries in our groups. The group will be open for everyone up to 8 p.m. And thank you very much. Thank you, Anjali madam. Today we have not feeling good. Still you join. This is show your commitments towards your work. Thank you very much. Thanks to all participants. Most of them they are repeatedly, continuously they are joining the sessions. It's very good thing.
and this is very good sessions and help to all accountant and students and businessmen. Share more to more peoples, they will get the more benefits. Thank you very much, and we will meet in the next Thursday. Thank you very much for joining, everyone. Have a good day. Yes, thank you, everyone. Thank you. Thank you, madam.